Hello students, welcome to the class of maths. Today we will start our new chapter, that is chapter number 12, exponents and powers. You know that if we are writing any number with 3 और उसको 2 लिखते हैं ऊपर, that is square of 3, तो 2 जो है यहाँ पे that is power of 3. For suppose also we have learnt about cube, that is 5 raised to power 3. इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 5 raised to power 3. We know that it is our cube, but we can also call it 5 raised to power 3. इस तरह से हमें कोई भी नंबर दिया हो, for suppose that is number is x and उसकी पावर जो है वो m है, that is called x raised to power m. कोई भी नंबर दिया हो, for suppose 10 raised to power 5, 9 raised to power 6. Today we will learn about rules of exponents and powers. Okay, let us see the first one. First rule says that a raised to m into a raised to n equal to a raised to m plus n. For suppose एग्जाम्पल लेके देखते हैं, that is 5 raised to 3 दिया है into 5 raised to 6, तो क्या होगा, that will be 5 raised to power 3 plus 6. हमारी जो पावर्स जो है वो डिफरेंट है और हमारा एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो क्या होगा, पावर्स का सम करेंगे हम, that will be 5 raised to 3 plus 6, that will be 3 plus 6 is that you know 5 raised to power 9. ओके हमारा आंसर क्या होगा, 5 raised to power 9. व्हेन वी हैविंग सेम एक्सपोनेंट्स और उसकी पावर जो अलग अलग है और हमें मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, दैट देन वी विल डू एडिशन करेंगे हम दोनों पावर्स का. बट what if we have given division, that is our second rule, a raised to m divided by a raised to n gives us a raised to m minus n. Let us see how, that is 3 raised to 3 divided by 3 raised to 2 ऐसे दिया गया है, तो क्या करेंगे, we will write 3 raised to 3 minus 2, that will be 3 raised to 1, और 3 raised to 1 को तो हम ऐसे ही 3 लिख सकते हैं. ओके, दैट इज़ अवर डिवीजन. मतलब जब हमारी एक्सपोनेंट्स जो है हमारे वो सेम हो और उसके पावर्स जो है वो डिफरेंट हो और हमें डिवीजन दिया गया है, तो हमारी पावर्स का subtraction करेंगे. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन सेज दैट a raised to m into b raised to m is equal to a into b raised to m. लेट अस सी, जब अब हमारी एक्सपोनेंट्स जो है वो अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है. लेट अस सी हाउ. For suppose we have given 3 raised to 5 into 6 raised to 5. ओके, तो क्या होगा, that will be 3 into 6 raised to 5. 3 into 6 that you know now, that is 18. तो क्या होगा, 18 raised to power 5, that is our 18 raised to power 5. क्या किया, एक्सपोनेंट्स जो है वो दोनों डिफरेंट है, पावर जो है वो सेम है, तो क्या किया, 3 into 6 किया और पूरे काउंट्स के ऊपर उसकी पावर 5, क्योंकि पावर तो हमारे पास सेम है, और 3 into 6 दैट विल बी 18. ओके, नाउ व्हाट इफ वी हैव गिवन डिवीजन दिया है, तो क्या करेंगे, let us see another example, that is 14 raised to power 5 divided by 7 raised to power 5. okay, that will be 14 divided by 7 raised to the power 5. okay, that will be 14 divided by 7, that you know 2 raised to power 5. अगर हमें इसको 2 raised to 5 को इस तरह से लिखना है तो भी रख सकते हैं, और उसको आपको फुल आंसर में कन्वर्ट करना है, that will be 32. Why 32? That you can check by yourself. 2 into 2 into 2, 5 times आप करेंगे तो that will be, our answer will be 32. okay, now let's see the next rule, that says that a raised to m, उसकी भी पावर दी है n, तो क्या होगा, that will be a raised to power mn. let us see how. if I am taking 10 raised to power 5 और उसकी पावर लेती हूँ 3, that will be क्या होगा, 10 raised to power 5 into 3. हमारी जो दोनों पावर्स है उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, that will be 10 raised to power 15. ओके, दैट इज इस तरह से कोई भी नंबर दिया है. फॉर सपोज आई एम टेकिंग 6 raised to power 3 और उसकी पावर लेती हूँ 10, दैट विल बी क्या होगा, 6 raised to 3 into 10. ओके, दैट विल बी 6 raised to power 30. okay, let's see the last one, that says that a raised to 0 equal to 1. कोई भी टर्म दिया गया हो लेकिन उसकी पावर जब 0 होगी, दैट विल बी नॉट 0, इट विल बी 1. फॉर सपोज दिया है 1 raised to power 0, दैट विल बी
1, उस तरह से 235 रेज़ टू पावर 0 दिया है। कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है दैट विल बी कंसिडर एज 1, नॉट 0। कभी भी वो 0 नहीं होगा, दैट विल बी ऑलवेज 1, जब हमारी पावर जो है वो 0 होगी तब। ओके, नाउ लेट अस सी द स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, for suppose we have given number like this 0.0001, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लेट अस सी, हमारे पास हमारे पॉइंट के बाद कितने नंबर है दैट वी हैव टू चेक। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो वी विल राइट 10 रेज़ टू पावर -5। ओके, दैट विल बी 1 इंटू 10 रेज़ टू -5, इस तरह से लिखेंगे। दैट विल बी 1 इंटू 10 रेज़ टू -5। ओके, दैट विल, अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.00036, इसमें क्या होगा? 36 लिखेंगे और चेक करेंगे कितने नंबर उसके बाद पॉइंट है, दैट इज़ 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 10 रेज़ टू -5। दैट इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी टर्म को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो वही पॉइंट की बात, अगर हमें इस तरह से दिया है तो 67,000,000, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? लेट अस सी, 67 को पहले एज इट इज़ लिख दो। अब चेक करो हमारे पास कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, देन राइट 10 रेज़ टू 6। ओके, अगर हमें कोई नंबर इस तरह से गिवन है, फॉर सपोज दैट इज़ 10 रेज़ टू -4, तो हम उसको 1/10 रेज़ टू 4 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर कोई साइन माइनस है तो हम उसको 1/ के फॉर्म में प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारे कोई हमारे फॉर सपोज देयर इज़ हियर वी हैव 10 रेज़ टू 4, तो हम उसको 1/10 रेज़ टू -4 ऐसा भी लिख सकते हैं। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है उस हिसाब से हम हमारे नंबर्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 रेज़ टू दी पावर -4 है, तो -4 को मैंने +4 में कन्वर्ट किया 1/ लेके। ओके, दैट इज़ 1/10 रेज़ टू 4, और यहाँ पे मेरे पास 4 था 10 रेज़ टू 4, तो उसको मैंने 1/10 रेज़ टू -4 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। दैट इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म।